Assalamu alaikum students, this is the fourth and the last part of the chapter chemical kinetics. Okay, our very first topic is temperature dependence on the rate of the reaction. So rate of the reaction is directly proportional to temperature, as most of the chemical reactions are accelerated by increase in temperature. Okay, for a chemical reaction, rise in temperature by 10 degree, the rate constant is nearly doubled. In the decomposition of N2O5, that is dinitrogen pentoxide, the time taken for half of the original amount to decompose is 12 minutes at 50 degrees Celsius, 5 hours at 25 degrees Celsius and 10 days at 0 degrees Celsius. So you can see that with rise in temperature, rate of the reaction is increasing. Okay. The effect of the temperature is usually expressed in terms of temperature coefficient, which is the ratio of the velocity of constant of a reaction at two temperatures differing by 10 degrees Celsius. So temperature coefficient is equal rate constant at increased temperature means T plus 10 degree Celsius upon rate constant at T degree Celsius. Okay. Now अब नीचे फिगर देखिए. In the below figure, the peak of the curve represent the kinetic energy possessed by the maximum fraction of molecules and that is known as the most probable kinetic energy. This one. ठीक है. This area shows the fraction of molecules. ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी ये एरिया बता रहा है जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है. वेरी लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉजेस आइदर वेरी लो और वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. Most of the molecules have average or intermediate kinetic energies between the most probable kinetic energy and the lowest kinetic energy. On raising the temperature to 10 degree Celsius, अब ये वाला जो ग्राफ है, ये जब हमने टेम्परेचर रेज कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, द मैक्सिमम ऑफ द कर्व शिफ्ट टू हायर काइनेटिक एनर्जी वैल्यू. अब ये देखो मैक्सिमम ऑफ द कर्व शिफ्ट टू हायर काइनेटिक एनर्जी वैल्यू and the curve spreads to the right such that there is a greater proportion of molecules with much higher energies. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कोलिजन फैक्टर बढ़ेगा. कोलिजन फैक्टर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बेटा? रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज. ओके, दैट्स वाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कॉन्स्टेंट इज नियरली डबल्ड. तो रेट क्या होता है? बढ़ जाता है. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन. ओके, नाउ वी विल स्टडी आर्हेनियस इक्वेशन. आर्हेनियस इक्वेशन स्टडी करने से पहले पढ़ो एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. द एनर्जी दैट एक्टिवेट्स पैसिव और नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स आफ्टर इट्स एब्जॉर्प्शन और मिनिमम एनर्जी इन एक्सेस टू नॉर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच मॉलिक्यूल मस्ट पॉजेज इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स ऑन कोलिजन. ठीक है. द मिनिमम एनर्जी विच द मॉलिक्यूल्स मस्ट पॉजेज इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स ऑन कोलिजन इज टर्म्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी. Arrhenius equation. The temperature dependence of a rate of a chemical reaction is expressed by Arrhenius equation and this one is the Arrhenius equation where K is the rate constant, A is the Arrhenius factor. ठीक है. E to the power minus EA upon RT. A is the Arrhenius factor or the frequency factor also called pre-exponential factor. It is a constant. A is constant. ठीक है. Specific for a particular reaction. हर reaction के लिए A constant होता है. R is a gas constant and EA is the activation energy measured in joules per mole. ठीक है. EA is the activation energy. This one is the activation energy. R is the gas constant. T is the temperature. A is the Arrhenius factor which is constant for a particular reaction. ठीक है. K is the rate constant. ठीक. Thus Arrhenius equation is a quantitative relationship between rate constant and temperature. So this one is a quantitative relationship between rate constant and temperature. ठीक है. एक्टिवेशन एनर्जी तो आपने पढ़ ली है. क्या होती है? The minimum energy that the molecules must possess in order to form product on collision. Now the concept of activation energy gives us an idea whether a reaction is slow or fast at a given temperature. A reaction which has lower activation energy proceed at a faster rate at a given temperature or vice versa. ठीक है. activation energy अगर कम होगी then at a given reaction the rate of the reaction will be fast. ठीक है. in comparison to the reaction at the same temperature for which the activation energy is high. Okay. The difference in activation energy are mainly responsible for observed differences in rate of the reactions. The concept of activation energy as applied to chemical relation can be explained by plotting energy against progress of reaction as shown. ठीक है. This one is the, यहाँ पे हमने y axis पे energy लिए, energy की values and here on x axis we are taking progress of the reaction. ठीक है. तो कैसे reaction बढ़ रहा है. Okay. EP is the energy of the products, ER is the energy of the reactants and ET is the threshold energy. Threshold energy is the minimum energy which the colliding molecules must have for effective collision. Okay, threshold means minimum energy which the colliding molecules must have for effective collision. Effective collisions क्या होते हैं? Effective collisions are those collisions which lead to the formation of product molecules. ठीक है. Now
अब ये देखो, द डिफरेंट प्लॉट्स रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी विद प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन आर एक्सप्लेन बिलो. द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दिस वन इज द, यहाँ पे पीक देखो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशन है. द रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू ई आर और एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स डू नॉट कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट्स. डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं. द रिएक्टेंट्स फर्स्ट एब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वेरी ट्रांजिटरी होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन का होता है, एंड हेंस इट स्प्लिट्स इनटू प्रोडक्ट्स टू एक्वायर स्टेबल स्टेट विद अ लोअर एनर्जी. और ये लोअर एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो नाइदर रिएक्टेंट्स नॉर प्रोडक्ट्स आर एट हायर एनर्जी, ठीक है. जो बीच का इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज द ट्रांजिटरी और फॉर वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है. द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो ई ए एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई टी माइनस ई आर, वेयर डेल्टा ई इज इक्वल टू ई पी माइनस ई आर, वेयर डेल्टा ई इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. If energy released by the dissociation of activated complex is greater than absorbed for its formation, then there is a net release of energy. अगर बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी उससे ज्यादा रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो दैट इन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. नेट रिलीज ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस. दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. फॉर सच रिएक्शंस एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लेस देन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, एंड डेल्टा ई इज इक्वल टू ई पी माइनस ई आर, और डेल्टा ई की वैल्यू होती है नेगेटिव, ओके, नेगेटिव होती है, एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. कब? व्हेन द एनर्जी दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज लेस देन द एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है. अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दौरान एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है in comparison to the energy which the reactant molecules have absorbed to form the activated complex, then the reaction is exothermic. Net release of energy takes place, ठीक है. Now on the other hand, if the energy absorbed for the formation of activated complex is greater than that release when it dissociates, यानी activated complex ज्यादा energy absorb कर रहा है और less energy release कर रहा है during its dissociation. Association के दौरान it is absorbing higher energy, and during its dissociation to form the products it is releasing lesser energy. Then the net reaction is endothermic. Okay, absorption of energy takes place. EP is greater than ER. Energy of the product is greater than the energy of the reactants, and delta E is equal to EP minus ER, and it is positive value. It is of positive value, and hence the reaction is endothermic. ठीक है, तो डेल्टा E अगर पॉजिटिव है then the reaction is endothermic. Both of these graphs are in your syllabus as well, okay, for exothermic as well as for endothermic reaction. तो अब ये देख लो एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ठीक. दिस वन इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक. एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स. व्हेन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज मोर देन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, देन दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ओके. रिलीज ऑफ एनर्जी इज बीइंग टेकिंग प्लेस हियर, ओके. तो एक्टिवेटेड एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये हो जाएगी. दिस वन इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है. ई ए इज इक्वल टू एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, एंड डेल्टा ई और एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू ई पी माइनस ई आर, मीन्स एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक. दिस वन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड डेल्टा ई इज नेगेटिव, ठीक है. व्हेन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड डेल्टा ई इज इक्वल टू नेगेटिव, देन दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक. तो ये ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना प्रॉपर लेबलिंग के साथ, ठीक है. नाउ दिस ग्राफ ऑल्सो यू हैव टू स्टडी अलॉन्ग विद इट्स लेबलिंग, ठीक. यहाँ पे क्या है बेटा, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, बाकी सब सेम है, एंड डेल्टा ई इज पॉजिटिव हियर. डेल्टा ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, एंड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज हायर, एंड हेंस इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू. यहाँ पे देख लो, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज हायर देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है. तो ये हायर वैल्यू हो जाएगी, एंड हेंस डेल्टा ई इज पॉजिटिव, ठीक है. दिस वन इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है उसको ही बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ओके. दिस इज द ग्राफ फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक. रिवर्सिबल रिएक्शन का आपके सिलेबस में नहीं है ग्राफ. Next is calculation of activation energy. Okay, it can be done through two methods. First is graphical and second is experimental. First we will see the graphical method. This one is the Arrhenius equation, that is K is equivalent to A e to the power minus A by RT. अब ये एक्सपोनेंट हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या हम करेंगे, लॉग इंट्रोड्यूस करेंगे. टेकिंग नेचुरल लोगैरिथम ऑन बोथ साइड्स,
द Arrhenius equation becomes ln k is equivalent to minus EA upon RT plus ln A, this one Arrhenius constant. ठीक है, अब देख लो y is equivalent to mx plus c वाला टर्म्स आगे, this ln k we will take on the y axis. ठीक है, 1/t we will take on the x axis, means temperature inverse we will take on x axis. Intercept is ln A and slope is minus EA by R. ओके, यही लिखा हुआ है यहाँ पे. The equation is of the form y is equivalent to mx plus c, which is a equation of a straight line. ठीक है, thus the plot of ln k versus 1/t gives a straight line with negative slope which is equal to minus EA by R and intercept of ln A. ठीक, so this one is the प्लॉट बिटवीन ln k एंड 1/t. अक्सर करके log k वर्सेस 1/t का स्लोप पूछ लेते हैं कि स्लोप क्या है. ठीक है, तो आप इसको नेचुरल लॉग हटाने के लिए 2.303 इंट्रोड्यूस कर दो. ठीक, तो क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन, log k इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी होता है. ठीक है, हम ये इसको इस इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे लिख दिया 1/t. ठीक है, प्लस log a. दिस वन इज द इक्वेशन, log k इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a. अब ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की तरह ही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, सो y एक्सिस पे क्या लेंगे, log k लेंगे, x एक्सिस पे टेम्परेचर इनवर्स लेंगे 1/t. ओके, टेम्परेचर का रेसिप्रोकल, एंड m इज द स्लोप दैट इज नेगेटिव EA अपॉन 2.303 r इज द गैस कॉन्स्टेंट, एंड log a इंटरसेप्ट हो जाएगा. ठीक है, सो बेटा दिस वन इज द प्लॉट फॉर log k वर्सेज 1/t. ठीक है, with intercept of log a and slope is equivalent to minus EA by 2.303 r. Now slope is equivalent to minus EA upon 2.303 r. Knowing the value of slope EA can be calculated. r तो गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो नोन ही होती है. ओके, सो EA can be calculated as minus 2.303 into gas constant into slope. ओके, next method is experimental method. Here energy of activation and Arrhenius constant can be determined from the rate constants at two different temperatures. Okay, तो two different temperatures पे values निकाल लेंगे rate constant की, and then we will merge these equations into one. ठीक है, ln k is equivalent to minus EA by RT plus ln A, और या तो हम इसको कन्वर्ट कर दें नेचुरल लॉग हटाने के लिए into log to the base 10. log k is equivalent to minus EA by 2.303 RT plus log A. ठीक है, let k1 and k2 be the rate constants at temperature T1 and T2. दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वैल्यूज निकाल लेंगे रेट कांस्टेंट की. log k1 इज इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 RT1. ठीक है, एट टेम्परेचर 1 प्लस log A, एंड एट सेकेंड टेम्परेचर log k इज इक्वल टू माइनस EA बाय 2.303 RT2 प्लस log A. ओके, वेयर A इज द कांस्टेंट, A तो कांस्टेंट ही रहेगा फॉर द गिवन रिएक्शंस. ठीक है, क्योंकि रिएक्शन सेम है. आर्हीनियस फैक्टर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन रिएक्शन. तो रिएक्शन तो सेम ही है ना बेटा, सिर्फ टेम्परेचर्स हम डिफर कर रहे हैं. ठीक है, तो A विल बी कांस्टेंट फॉर बोथ ऑफ द एट बोथ टेम्परेचर्स. ठीक, नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी विल हैव log k2 minus log k1 is equivalent to EA by 2.303 RT1 minus EA upon 2.303 RT2. log A कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, प्लस log A माइनस log A कैंसिल आउट हो जाएगा. अब log k2 by k1 is equivalent to, अब log का रिलेशन पता है ना, log A माइनस log B is equivalent to log A upon B. ठीक, तो log k2 माइनस log k1 is equivalent to log k2 by k1 is equivalent to EA upon 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 बाई T2. ठीक है, ये कॉमन ले लिया, दोनों के लिए कॉमन था. EA अपॉन 2.303 R एक्टिवेशन एनर्जी, डेट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एज वेल एज दिस गैस कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज कांस्टेंट रहेंगी. ठीक है, तो इनको हमने कॉमन ले लिया अपॉन 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2. सो दिस वन इज द इक्वेशन T2. अब ये आप लो LCM लो, फिर इसको फैक्ट T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. ठीक है, तो दिस वन इज द एक्सप्रेशन of experimental method. Okay, when we measure rate constants की values measure कर रहे हैं at two different temperatures. ठीक है, effect of catalyst. Now what is a catalyst? A catalyst is a substance which increases the rate of the reaction without itself undergoing any permanent chemical change. Okay, example, catalyst क्या करता है, सिर्फ rate of the reaction को enhance कर देता है. ठीक है, hydrogen and oxygen do not react at room temperature, but in the presence of spongy or powdered platinum the reaction occur vigorously. That means powdered platinum या spongy platinum is the catalyst here. ठीक है, similarly manganese dioxide catalyzes the following reaction in order to raise its rate considerably.
ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट का डीकॉम्पोजिशन हो रहा है इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड. सो इट इज इंक्रीजिंग और इनहेंसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन. द वर्ड कैटलिस्ट should not be used when the added substances reduce the rate of the reaction. In such cases the substance is called inhibitor. अगर rate of the reaction decelerate कर रहे हैं, ठीक है, या decrease हो रहा है on adding a substance, then that substance is termed as inhibitor but not a catalyst. Okay, according to intermediate complex theory, a catalyst participates in a chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants resulting in intermediate complex formation. ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेता है किसके साथ, रिएक्टेंट्स के साथ, और इसकी ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस होती है, वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, और ये फौरन ही डिकम्पोज कर जाता है टू यील्ड द प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड. ठीक, तो एग्जाम्पल ये देख लो, फॉर अ जनरल रिएक्शन ऑफ द टाइप दिस A + B गिव्स AB. अनकैटलाइज रिएक्शन ऐसे जाएगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट AB बन रहा है. कैटलाइज रिएक्शन में ABC कैटलिस्ट भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में पार्ट लेगा एंड द प्रोडक्ट, और फौरन ही ये डिकम्पोज कर जाएगा, ट्रांजिटरी होता है, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट रीजनरेट कर जाएगा. सिंस द कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ द इंटरमीडिएट, सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज इनफ फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट. स्मॉल अमाउंट ही इनफ रहता है. ठीक है, इट इज बिलीव दैट द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे और रिएक्शन मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, हेंस लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर जो होता है उसको लोअर कर देता है. इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द आर्हेनियस इक्वेशन, दिस one is the Arrhenius equation, that lower the value of activation energy faster will be the rate of reaction. तो ये क्या करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है. ओके, नाउ व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज द मिनिमम एनर्जी दैट द मॉलिक्यूल मस्ट पॉसेस इन ऑर्डर फॉर कोलिजन एंड हेंस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक, तो कैटलिस्ट क्या करता है, EA की वैल्यू डिक्रीज करता है. अब इस यहाँ पे देखिए, दिस वन इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक, थ्रेशोल्ड एनर्जी, the plot between the reaction coordinate versus potential energy, the plot of reaction coordinate versus potential energy. This one is the curve without the catalyst and this one is a curve with the catalyst. तो reaction path with catalyst, reaction path without catalyst. तो यहाँ पे देखो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट हाई है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वेरी हाई है. ठीक है, और कैटलिस्ट के साथ क्या हो गया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बैरियर स्लो डाउन हो गया है, वैल्यू कम हो गई है. ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विथ कैटलिस्ट की वैल्यू इतनी ही है एंड इट इज़ वेरी मच लेस देन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट द कैटलिस्ट. ओके, तो ये क्या कर रहा है, सिमिलरली रिएक्शन रेट को फास्ट कर रहा है. ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शंस. अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? ओके, डेल्टा G इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. ठीक, एंड इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, डैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन. ठीक है, ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी पे ही डिपेंड करता है, डैट इज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन टू रीच द प्रोडक्ट, पाथ टेकन बाय द रिएक्टेंट्स टू रीच द प्रोडक्ट. ठीक है, कैटलिस्ट यूज करें नहीं करें, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द गिब्स फ्री एनर्जी or delta G of a reaction, that means the difference of the energy between the reactants and the products. Okay, it does not change the equilibrium constant, rather it help in attaining the equilibrium faster. equilibrium constant नहीं change कर रहा है, ये बस क्या उस equilibrium को attain करना आसान कर रहा है. that is the catalyzes the forward and backward reaction both to the same extent so that the equilibrium state remains same but is reached earlier. Okay, now our catalyst catalyzes the spontaneous reactions but does not catalyze non-spontaneous reactions. सिर्फ नेचुरल रिएक्शंस को ही ये कैटलाइज करता है, डैट इज द रिएक्शंस डैट अकर नेचुरली. ओके, अ कैटलिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक, दे हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. द रिएक्शन विथ सेम रिएक्टेंट्स बट डिफरेंट कैटलिस्ट में यील्ड डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ठीक है, कैटलिस्ट कैसा होता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है, सेम रिएक्टेंट्स हैं और अगर हम कैटलिस्ट डिफर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं. A catalyst never starts a reaction which has no tendency to proceed. Okay. Now collision theory of chemical reactions and the conditions for a chemical reaction to proceed. ठीक है, या conditions for a chemical change. To explain the effect of a temperature on reaction rates, collision theory was proposed by Max Todd and William Lewis in 1916. Collision theory is based on kinetic theory of gases. According to this theory, the reactant molecules are assumed to be hard spheres and reaction is postulated to occur when molecules collide with each other. ठीक है, कंडीशन ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे आ गई, जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी.
The number of collisions per second per unit volume of the reaction mixture is called collision frequency, and that is denoted or represented by Z. Okay, EA is another factor, or activation energy is another factor which affects the rate of chemical reactions. For a bimolecular elementary reaction, that is A plus B, यानी यहाँ पे molecularity कितनी है, 2 है, to products, rate of a reaction can be expressed at this. ठीक है, यहाँ पे हमने frequency, collision frequency का factor भी introduce कर लिया, where ZAB is the collision frequency of the reactants A and B, and ये e to the power minus EA by RT is the fraction of molecules with energies equal to or greater than activation energy. When Arrhenius equation this is compared to the above equation, A can be related to the collision frequency. Not all collisions result into the product. ठीक है, second condition for a chemical change to occur is collisions in which molecules have sufficient kinetic energy, which is also known as or termed as threshold energy, and proper orientation result in breaking of bond between the reacting species and formation of new bonds to form the products. These collisions are referred to as the effective collisions. Okay, so threshold energy is equivalent to activation energy plus energy possessed by reacting species. ठीक, the collisions with improper orientation make the molecules bounce back, leading to the formation of no products. तो एक तो threshold energy होना चाहिए, next is proper orientation is also must in order for a reaction to form proceed to the product. ठीक है, नाउ अब ये देखो एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम ब्रोमोइथेन डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन है तभी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इंटरमीडिएट बनेगा, एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, नाउ व्हेन द ओरिएंटेशन फैक्टर इज टेकन इनटू अकाउंट द एक्सप्रेशन बिकम्स, अब ये P इज द ओरिएंटेशन फैक्टर, Z इज द कोलिजन फैक्टर, दोनों को इंट्रोड्यूस करके अब हमने रिएक्शन रेट के लिए इक्वेशन ली है. ठीक है, रिएक्शन रेट इज इक्वल टू PZAB e to the power minus EA by RT, where P is the orientation factor or steric factor or probability factor. Okay, it takes into account the fact that in the collision molecules must be properly aligned or oriented. ठीक है, therefore in collision theory activation energy and proper orientation of molecules together determine the criteria for an effective collision and thus the rate of a chemical reaction. Okay, limitations of a collision theory. Theory explains the result of a number of reactions, but it does not give satisfactory explanation in some cases. Now we will see some previous years questions related to the topics. ठीक है, अब in the Haber's process iron changes the dash of the reaction while molybdenum increases the efficiency of the dash. ठीक है, अब Haber's process क्या था, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया ऑन लार्ज स्केल. ठीक है, आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा था वहाँ पे और मोलिब्डेनम एज द प्रमोटर यूज़ हो रहा था. तो आयरन कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है, चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. वाइल मोलिब्डेनम क्या कर रहा था, एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट को इन्हेंस कर रहा था. तो क्या कर रहा था, इंक्रीज क्या कर रहा था, एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट. द इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज हाईली अनस्टेबल. ठीक है, कैसा होता है, अनस्टेबल होता है ड्यू टू द, क्यों, ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी. ठीक है, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विद विच क्या होता है, चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नहीं, चेंजेस द इंक्रीजेज, नहीं, सप्लाइज एनर्जी टू द रिएक्शन, नहीं, शॉर्टन्स द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, दिस इज करेक्ट. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैसे हम डिटरमाइन कर रहे थे, अभी हमने देखी थी ना, थ्रू एक्सपेरिमेंटल एंड ग्राफिकल मेथड. अब एक्सपेरिमेंटल और ग्राफिकल मेथड किस इक्वेशन पे लगा रहे थे, आर्हेनियस इक्वेशन. इन अ प्लॉट ऑफ log k वर्सेज 1/t द स्लोप इज, स्लोप क्या थी, ठीक है, स्लोप क्या थी, -EA अपॉन 2.303 R इज द स्लोप. राइट, आर्हेनियस इक्वेशन लिख लेना. ठीक है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सही है कि गलत है. सो व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, स्टडी इंक्रीज नहीं होती है, रैपिड इंक्रीज होती है. आर्हेनियस इक्वेशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है, रेट कांस्टेंट से. ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन पता है ना, k इज इक्वलेंट टू, डैट इज रेट कांस्टेंट इज इक्वलेंट टू a e to the power minus EA by RT. Okay, now see this question. A first order reaction is 50% complete in 30 minutes at 27 degrees Celsius and the same reaction is again 30% complete in 10 minutes at 47 degrees Celsius. Calculate the activation energy for the reaction. Rate constant की वैल्यू दी हुई 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, जो हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ा था फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, वो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे. बट पहले आपको K1 एंड K2 की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, है ना. तो K1 की वैल्यू कैसे निकल आएगी, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट, तो रिएक्शन
का 50% कंप्लीशन, तो ये क्या दिया हुआ है, टी हाफ दिया है इन 30 मिनट्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टी हाफ और हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, क्या रिलेशन था, 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। यहाँ पे कितना टाइम दिया हुआ है बेटा, टाइम इज गिवन ना, फॉर 50% ऑफ रिएक्शन कंप्लीशन 30 मिनट्स दिया हुआ है, तो 30 अपॉन 0.693 अपॉन 30 मिनट्स, ठीक। तो ये कुछ आ जाएगा आपका 0.023 मिनट समथिंग, पर मिनट, ठीक है, 0.023 पर मिनट आ गया। अब आप क्या निकाल लोगे, K1 आपका आ गया, यहाँ पे K1 आ गया, ठीक। K2 निकाल लो। K2 निकालने में हम हाफ लाइफ वाला तो लगा नहीं सकते फॉर्मूला, वाई, बिकॉज 50% तो कंप्लीट हुआ नहीं रिएक्शन, 30% कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। 2.303 अपॉन टी लॉग क्या था, A अपॉन A माइनस एक्स, ठीक। x जितना कंप्लीट हुआ है, A जो इनिशियल था, ठीक है, तो A माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 100 माइनस 30 डेट इज 70 हो जाएगा, A 100 हो जाएगा, 100% था, ठीक है। तो 2.303 और इसमें टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है, 10 मिनट्स दिया हुआ है ना, अपॉन 10 लॉग A हो जाएगा 100 और A माइनस एक्स मीन्स 100 माइनस 30 डेट इज 70, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कर लोगे, करके हम भी निकालते हैं, आप भी निकालो जब तक, ठीक है। ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 लॉग 10/7, लॉग 10/7 की वैल्यू होती है 0.155 और ये हो जाएगा 0.2303 इंटू 0.155 एंड द वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.036 और रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है पर मिनट, ठीक है। टाइम इनवर्स होता है, तो यहाँ पे टाइम मिनट में है तो पर मिनट हो जाएगा। अब आर्हेनियस इक्वेशन का एक्सप्रेशन अप्लाई कर दो। आर्हेनियस इक्वेशन का एक्सप्रेशन क्या था, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R, ठीक है, इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ओके, ये था, ठीक है। अब T1 कौन सा टेम्परेचर था, अब टेम्परेचर को हमको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन्स में, ठीक है। केल्विन्स में कंप्लीट करके वैल्यूज़ रख दिए। K2 हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, K2 0.036, ठीक है। तो लॉग 0.036 अपॉन, अब K1 भी निकाल चुके हैं, K1 इज़ 0.023, ठीक है। गैस कांस्टेंट इन्होंने कहा 8.314 लेना है, EA हमको निकालना ही है, तो EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, ठीक। अब T2 कितनी वैल्यू थी, T2 की वैल्यू थी 47 डिग्री सेल्सियस, तो 47 मीन्स 47 प्लस 273 कर लो, कितना आ जाएगा, 320 केल्विन माइनस T1 तो है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस 273 इज 300, तो 320 केल्विन माइनस 300 केल्विन अपॉन T1 T2 आपका हो जाएगा 300 इंटू 320। अब पूरा सॉल्व कर लो अच्छे से खुद से।